وہ صرف کوئی یہ لانگ مارچ یا نو کانفیڈنس ایکٹ نہیں ہے. جو 3 سال میں اس ملک کا حشر ہوا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا، مہنگائی جو آسمانوں پہ کی حدوں کو چھو رہی ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ پنجاب کے جو کینسر کی مفت دوائیاں شہباز شریف کے دور میں ملتی تھیں، آج وہ مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دوائیاں میسر نہیں ہیں. اس حکومت نے وہ دوبارہ معاہدہ اس کمپنی کے ساتھ نہیں کیا. کوڑے کے انبار جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 28 سال بعد جو یہ کاٹن پروڈکشن ہے وہ لوسٹ ہے. گنے کی جو پیداوار ہے وہ کم ترین ہے، گندم کی پیداوار کم ترین ہے. تو یہ مسائل ہیں اور اکانومی کا آپ کے سامنے ہے حال، مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے. تو میں بلاول صاحب کو اپنا جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں ان کی والدہ کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ ایک بہت بہادر عورت تھیں. انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، اس وطن کے لیے قربانی دی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے میثاق جمہوریت سے. اور اسی کا آؤٹ کم تھا کہ 10 سال جو ہے ایک اچھی روایات کے ساتھ ہم آگے بڑھے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا. لیکن آج جو 3 سال میں جو طوفان بدتمیزی ہے، پارلیمنٹ میں گالم گلوچ ہوتی ہے، ٹاک شوز پہ ڈاکو جو ہیں وہ ٹاک شوز کی زینت بنتی ہے، اس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے. کل جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں، یہ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم اہم فیصلے کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ آج کیا آفر لے کے آئے ہیں اور کس قسم کی آفر آج آپ نے حمزہ شہباز کو پیش کی ہے؟ اور حمزہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی سب سے پہلے جب پنجاب کے اندر، تو آپ نے ایک آفر سنائی تھی کاف لیگ کو. کیا وہ آفر آپ کی ابھی موجود ہے یا وہ آفر غیر مدت چھوٹی سی مدت کے لیے تھی؟ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم حمزہ شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے پنجاب میں اور پنجاب اسمبلی میں، اب حکومت کا جو خوف ہے اور حکومت کا جو حکومت کو پتہ ہے کہ ان کا حکومت چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے کتنا کمزور ہے، کہ ان کو قائد حزب اختلاف کو 2 سال میں جیل میں رکھنا پڑا تاکہ ان کا ٹانگے مانگے کہ حکومت یہاں چل سکتی. ہم تو آج اس لیے تشریف لے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اتنے دیر بعد قائد حزب اختلاف جیل سے باہر بھی آیا، اس کا مبارکباد بھی دینا تھا. اور خاص طور پہ جو ہمارا جوائنٹ وکٹری ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو ہرا دیا ہے، اس پتلی نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے، اس پہ بھی مبارکباد ضرور بنتا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قدم آگے لیں گے، پورا پی ڈی ایم مل بیٹھ کے، ماضی میں بھی ہم کنسنسس کے ساتھ فیصلے لیتے تھے، آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسس کے ساتھ فیصلہ لیں گے. اور ہمارا جو گول ہے، ہمارا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے جو مہنگائی کی سونامی میں اس وقت ڈوب رہے ہیں، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائق کت پتلی حکومت، چاہے وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو، ان پہ مسلط کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سمجھتے ہیں کہ عوام جب خود مختار ہوتے ہیں، جب عوامی نمائندے ان کے پارلیمان میں خود مختار ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے نمائندے کی منتخب کرتے ہیں جو اپنے عوام کا اصل نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے جمہوری قوتوں کے لیے جمہوری سپیس کھینچنا ہے تو ہم نے سڑکوں پہ بھی اور پارلیمان میں بھی، ہم نے سڑکوں پہ بھی سیاست کرنا ہے، لیکن ہم نے پارلیمان، سینٹ ہو، اسمبلیز ہو، وہ بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف کٹ پتلی ان اہم
عہدے پہ یا اہم فورمز پہ آ کر بیٹھے. سر بتائیں گا کہ بھائی چارگی کی سیاست بھائی چارگی کی سیاست بڑی اچھی چیز ہے, کچھ قوت ہو چکی ہے, پھر سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دینی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ لیا انہوں نے اعتماد کا, وہ آئینی ضرورت تھی یا ان کے اندر کا خوف؟ اندر کا خوف تو تھا ہی تھا, لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مذاق بھی تھا نا کہ آپ اکیلا گورا ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیاب ہوں, اور اسی ریس میں بھی آپ اس کاؤنٹ میں بھی اسی کانفیڈنس کاؤنٹ میں خود اس کو پھر دانلی بھی کرنا پڑے. مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے, یا شاید ووٹ نہیں دیے گئے جتنے دکھائے گئے, یہ مجھے نہیں پتا, میں خود موجود نہیں تھا. لیکن ایک اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایم این اے جو ہاؤس میں موجود تھا, اذان کا اس پہ ہم بات کرتے جب آتے ہیں. میں تھوڑا سا You sure? جہاں تک وہ سو کالڈ ووٹ آف کانفیڈنس ہے, میں شارٹ میں 3 پوائنٹس اس پہ اٹھانا چاہتا. سب سے پہلے یہ اپوزیشن کا موقف حکومت نے حکومت نے صدر پاکستان نے مان لیا ہے. ہم نے تو صرف 8 سینٹ کا الیکشن لڑا تھا, مگر صدر پاکستان نے مان لیا کہ خان صاحب نے اپنا میجورٹی کھو چکا ہے, اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ میجورٹی ثابت کرے نیشنل اسمبلی میں. ثابت کرتے ہوئے وہ تب بھی نمبرز میں کوئی کرٹیسزم رہا ہے جو اپوزیشن کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے, ان کا شکایت یہ ہے کہ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں اتنا وہاں موجود نہیں تھے. وہ ایک کنٹروورسی ہے جس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر لیا بائی الیکشنز میں کہ ملک کے کونے کونے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیت گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے عوام تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. پارلیمان میں گیلانی صاحب کا سینٹ سیٹ جیت کے ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ہمارے ساتھ ہے. اب ووٹ آف کانفیڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں لیں گے, اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور عدم اعتماد کہاں ہوگا. آپ نے پچھلے پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے لینا ہے. آپ کا اشارہ شاید پنجاب کی طرف بھی تھا کہ پنجاب سے شاید آپ آغاز لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں, 160 سے زیادہ نون لیگ کی ہیں, تو تحریک عدم اعتماد جہاں تک عدم اعتماد کے جو سجیسٹنس ہیں, یہ پارلیمان کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا, یہ آج کا نہیں کل کا نہیں, میرا پہلا دن سے موقف رہا ہے. اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو فاؤنڈنگ ریزولوشن ہے جس پہ سارے جماعتوں کا دستخط ہے, وہ تو پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ آپشنس اویلیبل ہے نا. جہاں اور کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, اوبیسلی ان کا حکومت یہاں ہے اور ان کا حکومت وفاق میں بھی ہے.
वफाक में मेरे सिर्फ 54 सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। वहाँ किसी ने नहीं शिकायत किया जब गिलानी साहब का सिर्फ लड़ाई हुआ मगर कामयाबी हुआ। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा जो पार्लिमानी स्ट्रेंथ है सूबाई असम्बली में है। सूबाई असम्बली में वो तो मुस्लिम लीग का है, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बग़ैर हम तो कामयाब नहीं होंगे। हम हर कदम पे, चाहे हम पार्लिमान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिलके फैसले लेंगे, साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब भी रहेंगे। माजी में आपका तजुर्बा है कि जब आपने साजिद संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट किया था तो आपके 14 अरकान उधर चले गए थे। अब दोबारा आप सेनेट में जा रहे हैं, गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब तो जीत गए, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि आपके अरकान दोबारा उठा के ना ले जाएंगे? तो माजी का चेयरमैन का इलेक्शन से हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर हम नहीं सीखते तो फिर हम ये जो नेशनल असम्बली का सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन था वहाँ हार जाते, वहाँ जीते, और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा कोशिश है हम सब मिल के मुकाबला करें तो जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का होगा। गिलानी साहब को जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको ज़मीर फरमोश कहा गया, लेकिन जब बात आती है इत्माद का वोट लेने की तो उन्हीं लोगों से इत्माद का वोट भी लिया गया। आप क्या समझते हैं कि वो लोग दबाव में वोट देकर गए हैं खान साहब को या अपनी मर्जी से वोट दिए? मैं समझता हूँ कि ना, जब वज़ीर आज़म खान साहब को अपना पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहा था, ना तब वो MNAs ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे और ना कल उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिए थे। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त कायम नहीं था, और इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना सिर्फ यूनाइटेड है मगर हमने साबित कर लिया है कि अवाम हमारे साथ हैं। तो जब अवाम आपके साथ होते हो, वो अवाम आपके साथ होता है तो कामयाबी भी आपको मिलता है। तो पंजाब में जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का फार्मूला कब अप्लाई? हम ये कोशिश कि हम इस हुकूमत का मुकाबला करें, हम जमहूरी अंदाज से, मेरे पास ना बंदूक है कि मैं गोली चलाऊं, ना हम गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं कि मैं कोई गैर जमहूरी रवैया अपनाऊं, ना कोई इदारा हमारे साथ है कि हम उनकी तरफ से कोई फ़ैसला लेके उनका उड़ा दें। हमारा हाथ में क्या हथियार है? अवाम का ताकत है और पार्लिमान है। ये दोनों चीज़ इस्तेमाल करके मेरा ईमान कहता है कि हम किसी भी कठपुतली का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर किसी जमात को कायल करना है वो तो हमारा जिम्मेदारी है, और हम सब मिल बैठ के फैसले लेंगे वो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया है नेशनल असम्बली की ये सेनेट के इलेक्शन में कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ऐसे स्ट्रेटेजिक और सियासी फैसले होंगे ताकि हम आगे जाके हम सब के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए और कामयाबियां हासिल कर सकें। पंजाब में अगर काफिले के साथ मैनेज करके कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो आप काफिले के साथ ताउन के लिए तैयार हैं? और चूँकि परवेज़ इलाही को बतौर CM भी कुछ रूमर्स आ रही हैं कि वो भी आ सकते हैं, आप बतौर अपोजिशन लीडर उनके साथ चलने को तैयार हैं? और मियां साहब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग आप लोगों के साथ राब्ते में, PDM के साथ, उनकी तादाद भी कुछ है? सर, बतौर अपोजिशन लीडर आपकी सोच क्या है कि कब तक आप ये कर सकते हैं? दूसरा, जो हुकूमती अलाइज हैं, क्या आप उनको जो है इसमें इंगेज करना चाहेंगे और क्या कोई राब्ता हुआ? मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद आप सब जानते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो थी अददी अक्सरियत के हवाले से सबसे बड़ी जमात थी, और जब 2008 के इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह PTI जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी। हम चाहते तो अपनी हम ख्याल जमातों के साथ उस वक्त हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जमहूरी असूल हैं। हमने PTI को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। जब 2018 में इलेक्शन हुए उसके बाद अपना जहाज़ों में MPs को ले जाया गया बनी गाला, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा तो उस तरफ बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी जमात उभरी। अब जबकि
आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से नहीं 10 साल से PTI की हुकूमत है, और नौशहरा में जो अल्हम्दुलिल्लाह PDM को कामयाबी हुई है, डस्का में हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना जो है वो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं, यानी 8 ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने जो है वो इस झूठी तब्दीली के नारे को दफन कर दिया है। और गिलानी साहब तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, आपके सामने मौजूद हैं। ये कोई आज के सियासतदान नहीं हैं, इन्होंने दिहाइयों पे सियासत की है, और जो आज जो इनका स्टेचर है इन्होंने अर्न किया है। तमाम जो हमारी PDM की जमातें हैं उनको दिल से उन्होंने उम्मीदवार मांगा और अल्लाह ने कामयाबी दी। तो पंजाब में हम PDM की जमातें हैं और हम अपना जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म पे फैसले करते हैं। पंजाब सिर्फ इशू नहीं है, इशू है कि आज जो इकॉनमी ज़मीन बोस हो गई है, शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की दूसरी मरतबा जेल में है। आप देख लें, एक पाई करप्शन जो है वो आज तक साबित नहीं हो सकी, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना दीगर। खुर्शीद साहब आप पाबंदे सरासल हैं, उनको भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो गुजारिश ये है कि कब तक पाबंदे सरासल रखकर, उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस ये है कि 3 साल बाद लोग जो हैं महंगाई का रोना रो रहे हैं, बेरोज़गारी का रोना रो रहे हैं। वो 50 लाख घर का जो आपने नारा लगाया था, वो नारा आज कहाँ हवा में चला गया? आज वो 1 करोड़ नौकरियां, लाखों लोग आज बेरोज़गार हो गए। तो गुजारिश ये है कि हमें पाकिस्तान की आवाम के उमंगों के ऐन मुताबिक, और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं गिलानी साहब की जीत की, ये जीत सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है। आज आप किसी रेहड़ीवान से पूछें, किसी मजदूर से पूछें, मुझे आप ये बताएं, मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ, एक सांस में आप रियासत मदीना का बात करते हैं, गरीब की रेहड़ी गिरा देते हैं, मजदूर की झोंपड़ी गिरा देते हैं, नाजायज़ तजावज़ात हैं, और बनी गाला का जो महल है वो अब मज़ीद 12 लाख में अपनी नाक के नीचे जो है उसको आप अपना जो है वो नाजायज़ तजावज़ात को जायज़ करार देते हैं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? तो मेरा ख्याल है कि इस नए पाकिस्तान के नारे ने पुराने पाकिस्तान के जो अपना तरक्की थी, जो 5.8% ग्रोथ रेट था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, और आज 0 है। महंगाई जो उस वक़्त थी, आज जो महंगाई है वो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं देखी है। तो गुजारिश ये है कि मैं अभी बिलावल साहब को भी ये कह रहा था, मैंने कहा ये सिर्फ पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का खेल नहीं है, पार्लियामेंट को भी हमने साथ लेके चलना है, आवाम को भी साथ लेके चलना है। और कल को अगर PDM जो है, जो आवाम ने से उम्मीदें व्यवस्था की हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमें पजीराई मिली है या हमें हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, अगर हमने आवाम के मसाइल जो नंबर 1 है हमारा एजेंडा, उनको हमने सामने रखा, तो कल को शायद आवाम मुझे और बिलावल साहब को भी माफ़ नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐवानों में भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और जो कामयाबी हुई गिलानी साहब की, ये अल्लाह का करम है, और अवाम में भी इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे, और ये इसका जो मंतकी अंजाम है कि एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हम पाकिस्तानी कौम को आपका सवाल 1 मिनट यार, ऐसे कहते आपकी बातों से ये आपने सवाल कर लिया जी, आपका सवाल आ चुका, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। नहीं बट तारीख की है तो बिल्कुल सर के ऊपर आ गई है। आपको लगता है कि लोगों को आप बाहर लाने में कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी होंगे, लेकिन मैं आप सबको जो यहाँ पंजाब के कैपिटल में आप सब यहाँ रहते हो, आप लाहौर में रहते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे, ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वजीर आला मिले, ताकि ये जो मसला आपके सामने आ रही, आपका पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था, पूरा पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल होता था कि लाहौर जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ का कंडीशंस थे, और अब पूरा पाकिस्तान में एक दूसरा किस्म का
एग्ज़ाम्पल बन चुका है। और जैसा हमजा भाई कह रहा था, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरते हैं तो जो सलूक आज PTI के साथ हो रहे हैं बाई इलेक्शंस में, अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करते हैं, इस हुकूमत को हर जगह पे हर सतह पे चैलेंज नहीं करते हैं, तो हमारा भी सलूक ऐसा ही होगा। हमारे ऊपर बहुत सा प्रेशर है कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे, हर मैदान पे टफ टाइम दे, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे, कंसेंसस के साथ ये फैसले लेंगे, और जब ये फैसले लिए जाएंगे तो हम इन पे इंशाअल्लाह ताला मिल के अमल भी करेंगे। ये सेनेट का इलेक्शन है, चेयरमैन साहब का, ये साहब गिलानी साहब खड़े हैं, तो चौधरीयों के पास भी एक वोट है सेनेट का, तो आप उनसे वोट मांगने के लिए जाएंगे आज? हम तो हर जो सेनेट में मुंतखब हुआ है, हर सेनेटर को राब्ता कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वोट मांगे। गिलानी साहब ने तकरीबन बहुत से ज़्यादा जो मेंबरान सेनेट है उनसे रिक्वेस्ट किया है वोट का, और चौधरी साहिबान जो है हमारा, जब हम हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म गिलानी साहब था तो हमारा इत्तेहादी भी थे, मैं ज़रूर खुद उनका घर पहुंच के उनसे वोट मांगा। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में जाकर ये लॉन्ग मार्च क्या सूरत शक्ल इख्तियार करेगा? क्या ये धरना होगा या कि कोई इसकी और सूरत हाल होगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में इस हवाले से थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये फैसले लेने हैं और साथ मिलकर ये फैसले लेने हैं। जो क्या हमने करना है इस्लामाबाद में, कैसे चलना है, ये मौलाना फजल रहमान आपके सामने ऐलान करना है। मेरा काम है मोबिलाइजेशन करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमात अपना मोबिलाइजेशन में शुरू कर चुके हैं। आपके पास खबरें भी आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भरता रहेगा और हम अपना हिस्सा और अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू। जेल में गुजारे PTI की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जेल में आप लोगों को बहुत ज्यादा VIP प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता रहा। काइंडली उस VIP प्रोटोकॉल के बारे में बताइएगा जो सो कॉल्ड जेल के अंदर आपको दिया जाता रहा। मैं उनको ऑफर करता हूं कि 2 साल वो भी जेल में गुजार दें।